Yes, good morning, everyone. Good morning. Yes, I request everyone to switch on your cameras and go through the topics. So the point number one is that there is a lot of confusion in IP about the syllabus. So the step number one is that look at your syllabus. So I request everyone, Jasleen, Amarveer, Harshit. So the step number one is everyone should have the latest copy of the syllabus. Clear? So I will just show you what is the syllabus is there presently. So in Python, you have a very less and reduced syllabus now. So only two topics. We have basically two data structures in Python. One is this series and other is data frame. So only two topics are there from the Pandas 1 and Pandas 2. Now the Pandas 2 has been scrapped. So only Pandas 1 and also in Pandas 1 also just two topics are there. First is series and the operations related to series, and then you have data frame and the operations related to data frame. That's all. So very less and reduced syllabus as compared to the Python is concerned. And with respect to the data visualization, we have only now just left with three graphs. One is line plot for clear. Line plot is there, then you have a bar graph is there, and the histogram. Three methods are now left here. Pi is removed, scatter plot, and frequency polygon. So many visualization based graphs have been removed from the syllabus, and we are now just left with three of the topics: histogram, bar graph, and line plot. And then the last topic that we have already gone through, you all are aware, that is the societal impact. So just you look at the syllabus and prepare accordingly from the maybe from the NCERT. Yes, any query with regard to the syllabus? Because yesterday I have basically the students, those who are not in touch, basically they find this difficulty that what is the current syllabus is there and what are the topics which are removed from the syllabus. So first you should have a copy of the syllabus, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बुक से, जो भी बुक है, सुमिता अरोड़ा की बुक है या एनसीईआरटी की बुक है, तो लुक एट द टॉपिक and then start preparing from the book. Okay, so this was the point number one. Point number two is so you can see the screen. Yes, sir. Yes, sir. This is the basically what is this? This is the syllabus we have. So
So there was an interruption. So we are back after the interruption. So this is the sample paper. So this sample paper is available on the CBSE website also. Clear? So if you will ask me, I will provide you. So this is the new pattern that we have. Clear? So the paper is of 35 marks. Clear? Term 1, MCQ based question, 35 marks exam is there. Time allowed is 90 minutes, 1.5 hours. So there are 3 sections are there, ABC, and also there is a lot of choices available. Section A consists of 25 questions, 1 to 25, and the student need to attempt just 20. So you have to best attempt 20 questions. ये नहीं है 25 में से 25 attempt करो. So the CBSE is going to check your first 20 questions only. Rest 5 will not be counted in your score. Similarly, section B consists of 26 to 49. So there are 24 questions. You need to attempt 20 questions. And section C is again is of 6 questions, and you have to attempt 5 questions. And a sample has been given here, and we will discuss this sample also. Clear? So that we check out the preparation, but the preparation is done. And just go through these questions, and you will also, the most important thing is that you have to check out the level of difficulty in the questions. What is the level of difficulty is there? Definitely you will find the question a bit more difficult, but the choice is there with our side. Clear? So this is the ultimate yes. Yes, are you able to view the screen now? Yes. Yes, sir. Yeah. So ultimately, we have to attempt for this sort of pattern. Clear? So this pattern actually came in your exam, so that's why your exam is not 100% according to this pattern. But the next exam that you will go in the school, that will be definitely based on this pattern. Clear? So I am just repeating again. Section A consists of 25 questions, and you have to attempt 20 questions mixed from societal impact and from Python. Then is question 26 to 49. 24 questions, you have to attempt 20. And then from section C, you have to attempt 5 questions out of the 6 questions. So should we practice this question paper today? Yes. Okay, so I will request only 4 or 5 persons are there. Okay, so let's start with the Amarveer only. Amarveer, just read the first question. Just wait for it. Yes. So first question is for Amarveer. Yes, sir. The name pandas is derived from the term A, panel data, B, panel series, C, Python document, and D, panel data frame. The answer is A, panel data. Panel data. Clear? We can look at the rest of the options. Panel. So basically, panda is a term that basically ये pandas किस चीज को कवर करता है? Pandas एक तो सीरीज को कवर करता है, that is one dimensional, एक डाटा फ्रेम को कवर करता है, that is two dimensional, और एक ये पैनल को रिप्रेजेंट करता है, जो पैनल जो है that is 3D. वो हमारे सिलेबस में नहीं है, but that is the part of pandas. So ये तो ना ही पैनल सीरीज आएगा, ना ही पैनल डाटा फ्रेम आएगा, ना ही पाइथन डॉक्यूमेंट आएगा. सो फर्स्ट इज द आंसर इज पैनल डाटा. सो पैनल डाटा के अंदर 1 डिमेंशनल डाटा भी आ जाएगा, 2 डिमेंशनल डाटा भी आ जाएगा, और 3 डिमेंशनल डाटा भी आ जाएगा. ये 3 डिमेंशनल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस पार्ट. So the question number 2 is also quite easy. Yes, Ajay Pratap. The command to install the pandas is 4 ऑप्शंस हैं, सोच के बताना कौन सा है. D वाला. हाँ, D वाला. कौन से वाला? Pip install panda. Yes, pip install panda. So we have used this commands number of times.
Clear? So the next question is question number 3. Yes, Harshit. Python Pandas was developed by option A, Guido van Rossum, Hmm. Travis Oliphant, Wes McKinney, and Brendan H. Then option C is the answer. Wes Option McKinney. C. Option C is the answer. Wes McKinney. Is it the right Yes. answer? Yes. Right. So that's the correct answer. Yeah, actually, I have gone through this question for solution also. That is clear. So sometimes now we also forget what is the correct answer is. Okay, so let's move to the question number 4. This is question number 3 is totally memory based question. So there is you need not to basically too much go for any sort of reasoning over there. So question number 4 is, so let us say Jasleen. Jasleen is there. Pandas series is A 2-dimensional, B 3-dimensional, C 1-dimensional, D multi-dimensional. Sir, it is 2-dimensional. It is 2-dimensional. So very quick answer. So this is not, series is not 2-dimensional. So as Harshit, Sir, option C, one-dimensional. yeah, yes, series is a 1-dimensional. Simple सी बात है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया, series is the 1-dimensional, then the data frame is 2-dimensional, and we have 3-dimensional also in pandas, that is represented by 3D panel. उसको हम 3D panel बोलते हैं, जो pandas का ही part है. Clear? So let's move to the question number 5, and who is prepared to answer, who is not, has been asked. Yes, Gurleen Singh. Oh, beta camera on kar lo. Harshit, Jasleen, Tarunjot, Gurleen. Yes, Amarveer, aap padho ye question number 5. Pandas is a package, language, library, or software. Yes, answer is Library. pandas is a library. So we say that pandas, isn't it a package? नहीं सर, लाइब्रेरी. So, Haji? सर, लाइब्रेरी होना चाहिए. so Library. like Pandas is the library, and then we get Matplotlib package under it. Yes, yes, yes. ठीक है, उसमें जो हम हमारे पास जो पैकेज है, कौन कौन से हमारे पास पैकेज, हम वो भी तो करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी. तो वहां पे पांडास किसको लेके हम चलते थे, पांडास को. जैसे हम मैटप्लॉटलिब को हम पैकेज लेके चलते हैं, सो पांडास को हम क्या ट्रीट करते थे, isn't pandas a package? Yes, sir, it is a package. अगर मैटप्लॉटलिब है, so we will just make sure this one. What is the exact answer is? ठीक है, अगर मैटप्लॉटलिब पैकेज है तो pandas भी definitely it should be a package only. So we have the solution with us also. So its answer is that the answer is C only, library. Library is the correct answer. Okay, so let's move to the next question. This is okay. Sometimes we get, yes, next is Ajay Pratap. Yes, Ajay Pratap. We can analyze the data in pandas with A, series, B, data frame, C, both of the above, D, none of the above. Sir, C. C, both of them. That is the correct answer.
ठीक है, सो लेट्स हर्षित, यस हर्षित आप करो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. Out of the following, which function can't be used to customization of charts in Python? Sir, I think option number B, color. ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है ठीक है. बेसिकली क्या है कि एक्स लेबल एक्स एक्सिस के लिए जो हम लेबल डेवलप करते हैं राइट करते हैं, ये टाइटल के लिए है, ये एक्स टेक्स के लिए है. और कलर्स वी डोंट यूज दिस कलर लाइक दिस CULOUR. Clear? So there is no such method is there. So customization, you know that customize how we basically make changes in our charts and how to basically to change the look and feel of the chart. So let's move to the question number 8. What is the minimum number of arguments for plot function in matplotlib? So who is the next one ready to answer? Yes, Jasleen is there? No, Jasleen is not there. Yes, Harshita. Oh, beta camera on kar lo, Harshita. Harshit. Gurleen Singh. No one knows if someone is there on the other side or not. Preparatory class may be, we may leave the class. Yes, Amarveer. So we are left with Amarveer The option. one. Hmm. Option yes. A. Option A. What is the minimum number of arguments required for plot function in matplotlib? अब ये प्लॉट मेथड से हम करते क्या है, लाइन प्लॉट करते हैं आई थिंक. और Yes. लाइन प्लॉट के लिए हमें दो वैल्यूज तो मेरे हिसाब से चाहिए, एक एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, एक वाई एक्सिस पे क्या चाहिए. ठीक है, किसी भी चीज को प्लॉट करने के लिए, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए, एक तो हमें उसकी लाइन की, जैसे आप देखो हमारे पास, अगर हमारे पास जस्ट अगर हम पेंट में एक डेवलप करते हैं एक चार्ट है, ठीक है, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, तो जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन के पॉइंट्स क्या है, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो एक हमें इसकी एक्स वैल्यू चाहिए, एक हमें यहां तक इसकी वाई वैल्यू चाहिए. अगर जैसे लाइन का ये वाला पॉइंट है, तो ये उसकी क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी, और ये इतनी क्या होगी उसकी वाई की वैल्यू. सो आई थिंक मिनिमम 2 पॉइंट्स आर नीडेड, और एक पॉइंट से भी लाइन ड्रा हो जाएगी. सर एक मिनट मेरी बात सुन लो. आई एग्री विद यू, मुझे आपका आंसर, मेरे दिमाग में भी यही आंसर था. बट जो CBSE की मार्किंग स्कीम थी, जिस दिन सैंपल पेपर आया था उस दिन मैंने चेक की थी, उसमें 1 था. 1 था, तो 1 से भी चल जाएगा मेरे हिसाब से. 1 का रीजन क्या है, दी लेट्स पहले इसका चेक कर लेते हैं आंसर. दैट इज द आंसर हियर इज 1. तो 1 से भी एक्चुअली क्या है, दैट इज इसी क्वेश्चन का आंसर जो है हमें, दैट इज वी विल गेट विद द एग्जीक्यूशन आल्सो. ठीक है, सॉरी इसको बंद ही कर देते हैं. यस, सो क्वेश्चन इज 8 का 1. जैसे एक से भी हमारा काम चल जाएगा, एक से काम क्या चल जाएगा कि एक से भी हमारे पास किस तरह की लाइन बनेगी, इफ वी हैव ओनली 1 पैरामीटर. जैसे हम एक्स ही सप्लाई कर देंगे इसके अंदर, सो नो, अगर हम इसको ट्राई करें ऑन दी जुपिटर नोटबुक, तो अगर हम एक्स की वैल्यू देंगे तो वो एक्स के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देगा. ठीक है, सो कहाँ पे वो वैल्यू फॉल करेंगी आप बता सकते हो? Straight line parallel to axis. Straight line parallel to the axis. यस कि उसमें कोई भी y की वैल्यू नहीं होगी. इफ यू लुक एट दिस वन, तो अगर हमारे पास x की वैल्यू हुई है, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये वो सारे x पे पॉइंट आ जाएंगे, तो लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी. सिमिलरली इफ वी डोंट हैव द x एट्रीब्यूट, सिर्फ हमारे पास y एट्रीब्यूट ही है, तो इस तरह की लाइन बन जाएगी हमारे पास. द पॉइंट्स आर जस्ट लाइंग ऑन द y एक्सिस ओनली. क्लियर? सो दैट इज द ट्रिकीनेस that we have. अगर हमने इस चीज को, पॉइंट को
डिस्कस किया होगा, then we will be able to answer this question. So let's move to the question number 9. Yes, Amarveer, पढ़ना इसको. Method or function to add a new row in a data frame is a.loc, b.iloc, c join, and d add. Answer is .loc. That answer is .loc. .loc. So to add a, yes, Gurleen. सर ILOC भी तो हो ही सकता है. LOC मेथड ही है इसका आंसर. जस्ट आप ट्राई करके देखना है रो को ऐड करने के लिए ILOC. ठीक है. होगा तो इसमें से एक ही मेथड भी, डोंट हैव द मल्टीपल ऑप्शंस टू बी सिलेक्टेड ओवर देयर. ठीक है. सो जहां जहां पे आपको कंफ्यूजन है, माय रिक्वेस्ट इज प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट आल्सो एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट द टॉपिक्स. ये नहीं है कि 100%, तो 5-10% तो मेरे को भी डाउट है कहीं ना कहीं पे. सो नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, सो इफ यू आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड, सो देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ ए कंफ्यूजन. एंड द बेस्ट वे टू सॉर्ट आउट द कंफ्यूजन इज जस्ट गो थ्रू. आप उसका थ्योरी भी चेक करो एंड ट्राई टू बेसिकली इंप्लीमेंट दोस क्वेश्चंस ऑन दी. जैसे अभी हमारे पास जो लाइन प्लॉट के लिए हमने डिस्कस किया था, फॉर लाइन प्लॉट की हमने कभी डिस्कस किया नहीं क्लास के अंदर कि एक पैरामीटर से भी लाइन ड्रॉ हो जाती है, ना ही हमने कभी टेस्ट करके देखा उसको. क्लियर. सो नाउ इट्स बेटर दैट कि हम एक लाइन प्लॉट का क्वेश्चन ले ले और हम उसके अंदर प्लॉट के अंदर एक ही पैरामीटर को पास ऑन करें एंड चेक आउट वेदर द लाइन इज ड्रॉन और नॉट. सो जो इसको प्रैक्टिकली कर लेगा, ही विल बी इन मच मोर कंफर्टेबल sort of. So then next we have a dash based question. Yes, Gurleen, आप करो इसको ट्राई. Dash is the function to save the graph. A save figure, second B option save figure, and C save graph, D save chart. And sir, answer is I think first one, sir. हाँ जी. Sir, first one I think. हाँ, सेव फिग ही है, यही हमने मेथड किया था, बाकी तो कोई है ही नहीं. अगर हमने यूज किए हुए हैं सारे मेथड्स, सेव चार्ट भी कोई नहीं है, सेव ग्राफ, सेव फिगर, सेव फिग इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. सो यस, हर्षित. Sir, option B, digital footprint. तो पढ़ तो दो, क्वेश्चन क्या है. Dash is a unique data trace of users' activities, actions, communications, or transactions in digital media. Yes, so that is we have discussed this point. Digital handprint कोई है नहीं term, we have not encountered offline footprint and offline handprint. Digital footprint is the unique trace of users' activities and actions and communications and transactions in the digital media. So that's these are the topics from societal impact. So the question number 12 is will be yes, Tarunjot. Yes, Tarunjot. Harshita. कुछ जल्दी करो बेटा. Which of the following is not a type of cybercrime? A. Data theft. B. Forgery of online documents, damage to the data and systems, installing antivirus for protection. ABCD में से कुछ तो बता दो. ABCD. D. So definitely that is the way, installing antivirus and for protection. This is not a type of cybercrime. So this is basically to protect ourselves from the cybercrime. Then the question number 13 is
Yes, Amarveer. The F in FOSS stands for free, forever, fire, or freezing. The answer is free. So few questions are actually very easy. So this question is also in the very easy sort of categories there. Next is Ajay Pratap. Yes, Ajay Pratap है भी है या नहीं? Not. So Gurleen. Which of the following import statement is not correct? Import pandas at class 12, import pandas as 1 PD, import pandas as PD1, and import pandas as PD. So the answer is A. A, very good. So Harshit. Sir, option B. Harshit is saying option B. Harshita. Harshita is not, maybe not there. Tarunjot. Yes, Amarveer. So the answer will be option B, because whenever we are writing an import statement, the name which we are giving cannot start from a digit. It needs to start from a particular alphabet. In the second case, it is 1 PD. So we cannot start it from 1. ये आपको पता है ये क्लास 12 का क्वेश्चन, ये क्लास 11 का क्वेश्चन बन गया। ये इसकी बैकग्राउंड क्या है? इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड, अगर हम इसका आंसर जैसे जो आपने आंसर दिया है, तो इसकी बैकग्राउंड कहाँ पे छुपी हुई है? वेयर दी बैकग्राउंड इज हिडन? Variable names. वेरिएबल नेम, बेसिकली आइडेंटिफायर है इसका। हाउ वी नेम ए आइडेंटिफायर, व्हाट आर द रूल्स आर देयर फॉर नेमिंग ए आइडेंटिफायर? So as told by Amarveer that the identifier should not start with a digit. So its simple answer is there, that a identifier should not start with a digit. So let's move to the next IPR. We have done a lot of hard work on this IPR and these topics. Question number 15. So yes, Harshit, aap karo, Harshit. IPR stands for Intelligent Property Rights, Intellectual Property Rights, Intellectual Property Reserve, and Intellectual Product Rights. Sir, I think option C. Yes, yes. So this is again a very easy sort of a question is. ठीक है जी. Yes, गुरलीन कैमरा ऑन कर लो बेटा आप. सर आज औखा है सर कैमरा ऑन करना सर. चलो ठीक है. आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेश्चन यू हैव? सर मैं भूल गया नीचे करना सर. ठीक है. और लेट्स यस तरुणजोत आप करो ट्राई ये क्वेश्चन 16. Which of the following is not a violation of IPR? Yes, Harshit. Option A. Option A. Very good. Yes, Harshit. Sir, option C, patent. Option C, patent. So which of the following is not a violation? Plagiarism is a violation of IPR. Copyright infringement is a violation of IPR. Trademark infringement is a violation of IPR. So simple thing is patent is a way to protect the IPR. So this is the थोड़ी सी अगर हम रीजनिंग करें so we'll be able to answer. ठीक है. अगर आप लोगों के पास टाइम होगा ना तो don't be in a hurry to answer. Please take a while and ठीक है. ये क्वेश्चन को अगर आप सोच के भी करोगे तब भी आप 10-15 सेकंड के अंदर सोच के भी कर लोगे आप इसको आराम से. सो डोंट ट्राई टू आंसर इन 1 or 2 seconds. अगर आपके पास टाइम है तो उसको अच्छी तरह से यूज करना उसको. यस हर्षिता, क्वेश्चन नंबर 17. While Yes. accessing Yes. Sorry. Yes.
While accessing the column from the data frame, we can specify the column name. In case column does not exist, which type of error it will rise? Option A, key error. Option B, syntax error. Option C, name error. Or option D, runtime error. In case the column does not exist, Sir, option C. name error. While accessing the column from a data frame, we can specify the column name. In case column does not exist, so which type of error it will be? वो column exist ही नहीं कर रहा, तो that will be a B or D तो competition से बाहर है. There is a sort of a competition between key error and name error. So you have said about the name error. So I am also not 101% sure about this error. So let me check. This was the key error. So this will be a key error. Okay. So it will not be name error, key error. So why it can't be the name error? No, actually पता क्या है कि की एरर जो आप लोगों ने की एरर एनकाउंटर किया वो कहाँ पे आता है? की एरर आपको पता है कहाँ पे आता है की एरर? तब कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं करता उस पर्टिकुलर लिस्ट में. कभी आप प्रोग्राम को रन करके देखना, वहां पे देखना की एरर कहाँ पे आ रहा है. बेसिकली जहां पे हमें इंडेक्स वैल्यू दी हुई है एंड दैट इंडेक्स वैल्यू इज मिसिंग. अगर हमें कोई कॉलम वैल्यू दी हुई है, वो कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता. कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम नेम को रिप्रेजेंट नहीं करता, कॉलम की को रिप्रेजेंट करता है. कॉलम एंड इंडेक्स, चाहे रो का इंडेक्स है चाहे कॉलम का नेम है, कॉलम का नेम को रिप्रेजेंट नहीं करता, कॉलम का नेम जो है की को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार इसको करके देखना. दिस इज वेरी गुड. सॉरी आउटसाइड दी वी हैव ए वेरी यस. तो जो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जहां जहां जिस भी क्वेश्चन में डाउट है ना, सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज, इसमें कोई ज्यादा एफर्ट रिक्वायर नहीं है. एक डाटा फ्रेम बनाओ, डाटा फ्रेम में आप उस कॉलम को एक्सेस करो जो कॉलम वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ आपने, एंड सी व्हाट टाइप ऑफ एरर इट गिव्स. तो ये सारे अप्लाइड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऐसे आंसर कर दिया है एंड यू आर एबल टू आंसर और नॉट. सो प्लीज डू दीज क्वेश्चंस प्रैक्टिकली. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. यस समरवीर, आप करो. क्वेश्चन नंबर 18. Trash is the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own. A, plagiarism. B, copyright. C, patent. And D, all of the above. The answer will be A. Answer is A, plagiarism. A, plagiarism. Okay, so that is the copying someone else. ये काफी बार हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया क्लास के अंदर. क्वेश्चन नंबर 19. सो यस हर्षित. Functions to display the first n rows in the data frame. A, tail. B, head. C, top. D, first. Option B, sir, head. Yes, yes. So this is also a very easy question. पहले 20 क्वेश्चन तो मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ ए क्वेश्चन ही होंगे इसके अंदर. यू विल नॉट गेट टू मच अप्लाइड क्वेश्चंस. यस, क्वेश्चन नंबर 20. यस हर्षिता, पढ़ना. Following are the impact of e-waste on the environment. Choose the odd one out. Option A, soil pollution. Option B, water pollution. Option C, air pollution. Or option D, sound pollution. ऑड वन आउट निकालना है. इसमें से ऑड वन कौन सा है? Sir, I think option D, sound pollution. ऑप्शन डी. यस यस. बेसिकली बाकी सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, साउंड पोल्यूशन नहीं होगा ई वेस्ट से. तो ई वेस्ट ये तो एयर पोल्यूशन भी करता है, वाटर में जाएगा वाटर पोल्यूशन करेगा, सॉइल में जाएगा तो सॉइल पोल्यूशन करेगा. तो ये साउंड पोल्यूशन नहीं करेगा वो कभी भी. ओके, सो लेट्स सी
अभी किससे क्वेश्चन नहीं पूछा? यस, तरुणजोत, एंड तरुणजोत के बाद गुरलीन. सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो यस, तरुणजोत पढ़ोगे इसको? नो सर, सर मेरा गला नहीं ठीक, थोड़ा आवाज. So I am reading the question. So I will ask जो भी इसको आंसर करना चाहेगा. Abdul has deleted all his chats from his social media accounts and he thinks that all his traces are deleted completely. Is he right in thinking so? Yes, Harshita, आप करो इसको आंसर. Harshita. नो सर. No, yes. So that's correct answer. क्योंकि वो traces जो है that they stay over the internet. So they are not removed. So good. So question number 22, Gurleen. Yes, Gurleen, आप पढ़ो. The legal and regulatory aspect of the internet refers to cyberspace, cybercrime, criminal law, IT Act. Yes, yes. जहां पे भी ये लीगल और रेगुलेटरी वर्ड आ गया ना, तो ये किसी ना किसी एक्ट से ही कंट्रोल होगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. इसमें थोड़ा सा अगर हम रीजनिंग करें, द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट, फिर भी इसको एक बार आई वांट टू क्रॉस दिस चेक क्वेश्चन नंबर 22. बाद में ये ना लगे हमने यस यस कर दिया और कुछ और ही निकल जाए. सो 22 द बी इज द राइट आंसर. जस्ट टू क्रॉस चेक आवरसेल्फ वेदर वी आर आंसरिंग इट करेक्टली और नॉट. ओके, सो जहां पे भी एक्ट रेगुलेटरी चीज आएगी तो इसका मीनिंग है वी आर टॉकिंग ऑफ सम एक्ट. यस, क्वेश्चन नंबर 23. यस, अमरवीर. So pandas data frame cannot be created using a dictionary of tuples. सीरीज. यस यस, म्यूट कर लिया. म्यूट अमरवीर, आप यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ. Pandas data frame cannot be created using a dictionary of tuples, B series, C dictionary of list, and D list of dictionaries. The answer will be option A, dictionary of tuples. Yes. बाकी सारे हमने करके देखे हुए हैं. द बेस्ट इज कि हमने डाटा फ्रेम को सीरीज से भी क्रिएट करके देखा है, डाटा फ्रेम को डिक्शनरी से भी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से भी किया है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से भी किया है. ये वाला पॉइंट हमने कभी क्लास के अंदर यूज भी नहीं किया हुआ. क्लियर? सो टपल्स आर नॉट बेसिकली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द डाटा फ्रेम. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24. 24 is yes, Harshit. Next, Harshita. Which function will be Yes, yes. Yes, पढ़ो शाबाश बेटा. which function will be used to read data from a CSV file into pandas data frame? The read underscore CSV bracket. Read underscore CSV. Yes, yes, that's correct. Read from CSV file to a, फिर भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें. 24 read underscore CSV is the correct answer. Next is yes, Harshita. Which of the following is not a attribute of pandas data frame? Length, t, size, shape. ये जो हम एट्रीब्यूट डिस्कस करते हैं, इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है ऑफ pandas data frame? Yes, Harshita, 12B. Sir, option B. ऑप्शन बी. सो बाकी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेंथ भी है, साइज भी है. ठीक है, एंड फिर भी एक बार इसको बिफोर वी बिकम मच कॉन्फिडेंट. 25 इज 25 का राइट आंसर है लेंथ. तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज ये चेक करना ये टी एट्रीब्यूट कौन सा है. ठीक है, साइज एंड शेप तो हमने यूज किया हुआ है. लेंथ भी मेरे हिसाब से लेंथ के बारे में तो हमें साइज से ही पता चल जाएगा. तो लेंथ इज नॉट ए एट्रीब्यूट. तो इसको आज चेक करके देखना. बेसिकली अब हमारे पास क्वेश्चन है ये टी एट्रीब्यूट क्या करता है. If you know the T attribute, so we'll be able to judge कि length is the
is the correct answer. That which is the following is not a attribute of pandas data frame, that is the length. ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, so try to work on these questions. So next जो questions है हमारे पास, so the person who is very good in programming will be able to answer. ये पहले 20 क्वेश्चन जो है ये पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, how to pass the exam. अब next जो है section B and C, this is from scoring point of view. So you can see the question number 26. What will be the output of the following given code? So we start with Gurleen. I think Gurleen is good in programming. Yes, Gurleen. हाँ जी सर, तो इसका आंसर आएगा सर 3 आएगा मेरे हिसाब से सर। 3 आएगा पक्का। इंडेक्स हाँ देखो, इंडेक्स है अकरम का इंडेक्स है 1, ब्रिजेश का इंडेक्स है 2 और चारू की इंडेक्स वैल्यू है 3। सो ठीक है, ये देखो ये सारे अप्लाइड क्वेश्चन है, आप इनको क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके आप रन करके भी देख सकते हो। सो माय रिक्वेस्ट इज डू दीज थिंग्स प्रैक्टिकली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज goes to yes Tarunjot, आप करो बेटा ट्राई ABCD में से, look at what will be the answer. Assuming the given series, the name of the series is stud, which command will be used to print the 5 as the output? 5 output आनी चाहिए। सर पता नहीं सर, नो आइडिया। चलो ठीक है, यस गुरलीन। सर डी ऑप्शन, साइज। सो साइज इज द आंसर। ठीक है, एक बार इसको 27 को एक बार क्रॉस चेक भी कर ले। 27 इज यस, 27 इज द राइट आंसर, जस्ट टू वेरीफाई द आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यस हर्षिता, आप करो इसको ट्राई, रीड द क्वेश्चन। A social science teacher wants to use a panda series to teach about Indian historical monuments and its states. The series should have the monument names as values and state names as indexes, which are stored in the given list as shown in the code. Choose a statement which will create the series. ठीक है, आपने ABCD में से वो स्टेटमेंट उठानी है दैट विल बी एबल टू क्रिएट द सीरीज। A है, B है, मोन्यूमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा को, तो मोन्यूमेंट तो सही है, मोन्यूमेंट पहले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन। सोशल साइंस टीचर वांट्स टू यूज and its states। ठीक है, तो वैल्यूज है, मोन्यूमेंट डाटा का पार्ट बनेगा। ठीक है, और स्टेट इज द इंडेक्स। तो ये चीज तो क्लियर होगी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। यस गुरलीन। सर सी और डी सेम ही ऑप्शंस हैं, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। सी एंड डी नहीं सर, ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि जो सीरीज है एस कैपिटल होता है हाँ, और ये देखो ऑप्शन डी में वो स्मॉल है। यस अमरवीर ने अच्छा पॉइंट रेज किया। ये देखा, ये चीजें भी देखनी है, हमने जल्दी नहीं करनी। हाँ चलो कोई बात नहीं। सो दैट इज, इसमें एस छोटा है तो हमने बड़े एस वाले को, तो ये ए ऑप्शन, व्हाई ए ऑप्शन इज नॉट द राइट आंसर? हम क्योंकि सर डीएफ है वहाँ, हाँ जी, क्योंकि सर डीएफ है वहाँ पे सर, वो डाटा फ्रेम के लिए यूज होता है। यस हम नाम यूज करते हैं उसको ऐसे। ठीक है, दैट्स सो मेरे को भी नहीं इतनी जल्दी में पता चला व्हाई इज नॉट द राइट आंसर। सो वेरी गुड, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। यस हर्षिता हैज ऑलरेडी आंसर्ड, सो नेक्स्ट इज हर्षिता।
Dash is a cybercrime in which a target or targets are contacted by email, telephone, or text message by someone posing as a legitimate institution to lure individuals into providing sensitive data such as personally identifiable information, banking and credit card details, and passwords. Option A, plagiarism. Option B, phishing. Option C, cyberstalking. Or option D, hacking. Sir, option B. ऑप्शन नाम बताया करो साथ में, ऑप्शन के साथ. Option B, phishing. Phishing. So phishing is a cyber crime in which a target or targets are contacted. So yes, basically हम phishing से ही अटैक करते हैं through using email, telephone or text message by posing someone into providing sensitive data. ठीक है. Plagiarism is just basically copying the data. So किसी के डाटा को हम कॉपी कर रहे हैं, that is not the sort of things that we are discussing here. Phishing we have discussed. Cyber stacking क्या होती है ये? I think this is cyber stacking. ये आ जाता है cyber bullying के point of view से आ जाता है मेरे हिसाब से. Sir, it means looking at someone's content without their prior permission and like हाँ. keeping an eye on some. और hacking, why the hacking is not hacking? Sir, in hacking, they are not contacted by emails, but their Yes, systems yes. and networks are direct. Because yes, in hacking में क्या है basically कि हम किसी को contact किए बगैर ही उसके content को हम fetch करने की कोशिश करते हैं. So that is phishing is the very good, that is the right answer. तो थोड़ा सा बाकी options को भी थोड़ा सा critically evaluate कर लिया करो जल्दी. So I think that's question number 30 is, ये आपको इस वाले एग्जाम में भी हेल्प करेगा ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है. So observe the following figure and identify the coding obtained as this out. तो किस नीचे वाली कोडिंग से इस तरह की आउटपुट आएगी, और मेरे को ये रीजन के साथ आंसर करना है आप लोगों को. जो भी आंसर करना चाहता है फर्स्ट रेज योर हैंड. सो हाँ जी अमरवीर करो सर, try. इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि बाकी जो सारे ऑप्शंस हैं उनमें सिर्फ हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, पर अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो वहां पर हमें 3 मेन पॉइंट्स मिल रहे हैं लाइन के अलावा. एक हमें मिल रहा है 4 और 1, एक हमें 5 और 2, और एक 3 और 1. तो अगर हम सब में आइडेंटिफाई करें, बाकियों में सिर्फ हम 2 वैल्यूज यूज कर रहे हैं. 3 वैल्यूज वाला जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ बी ऑप्शन. वैसे भी अगर हम इसको चेक करें तो ये इसको करेक्ट भी करते हैं, जैसे 1 और 4, ये देखो 1 और 4 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आ गया. और नेक्स्ट है दिस इज x की वैल्यू है 2, दिस इज आई थिंक 2 इज हियर, और उसके कोरस्पॉन्डिंग है 5. सो दिस इज रिक्वायर्ड. सो वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही है. ठीक है. नेक्स्ट इज यस तरुणजोत इज देयर. तरुणजोत, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन. तो यस हर्षिता आप पढ़ना. हर्षिता. Statement A. To make a histogram with matplotlib, we can use the plt.hist function. Statement B. The bin parameter is compulsory to create histogram. Option A, statement A is correct. Option B, statement B is correct. Option C, statement A is correct but B is incorrect. Or statement D, A is incorrect but B is correct. अच्छा इसका आंसर छोड़ो पहले. माय क्वेश्चन इज देयर कि असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है बेसिकली. हाउ वी गो विद द असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. पहले हमें इसको आइडिया तो हो जाए. यस अमरवीर विल एक्सप्लेन ऑन दिस. सर, अगर हम असर्शन और रीजनिंग को एनालाइज करने लगे, पहले तो ये हमारा वन टाइप ऑफ सिंगल टाइप क्वेश्चन नहीं है.
फर्स्ट पार्ट में हमें ट्रू और फॉल्स चेक करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स। उसके बाद जो अगर हम ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में आ जाते हैं, कोई एक फॉल्स आ जाता है, तो हम ऑप्शन सी और डी में जा सकते हैं। और अगर हमारे दोनों ट्रू आ रहे हैं, फिर हमारा सेकेंड स्टेप शुरू हो जाता है। वहां पर हमें रिलेशन एनालाइज करना होता है कि जो फर्स्ट वाला है क्या वो दोनों स्टेटमेंट्स इंटरलिंक्ड हैं, और क्या सेकेंड वाला जो है उसी की वजह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा इट इज द एक्यूरेट रीजन। यस अमरवीर, सॉरी टू स्टॉप यू। आप ये बता सकते हैं कि जो पहली वाली स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ए, वो किसको रिप्रेजेंट करती है बेसिकली? So statement 1 represents any kind of fact or any kind of like something which is factually true. Yes, which is factually true. Yes. And statement B? So statement B is something based on analysis, and it is reasoning sort of. Yes. Like तो बेसिकली वो उसको सपोर्ट करने के लिए, स्टेटमेंट ए को सपोर्ट करने के लिए एक रीजन है हमारे पास कि whether whatever we have said in the option A, B is correct, is saying उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं सपोर्ट कर रहा है, उसके एंटी है या उसके सपोर्ट में है। So now let's try to evaluate this question. पहली क्या है हमारे पास स्टेटमेंट A is to make a histogram with matplotlib we can use the plt.hist function. So I think this is correct. हर्षिता, ये करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? मैटप्लॉटलिब में हम हिस्टोग्राम के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? ये करते हैं? हिस्टोग्राम, आई थिंक ज्यादा देर हो गई है हिस्टोग्राम को पढ़े हुए। यस एनीवन? यस अमरवीर, आप बताओ, इज इट करेक्ट और नॉट? Yes, sir, it is correct. ठीक है। सो द सेकंड पैरामीटर इज the bin parameter is compulsory to create a histogram. चलो एक मिनट, थोड़ा सा अगर हम इसमें से टाइम ले so why we are too much confused. This is data visualization and we'll be able to, तीन तो मेथड है हमारे पास। so नंबर 3 पे है हिस्टोग्राम। लाइन हो गया, लाइन के बाद बार हो गया, बार के बाद है हमारे पास द थर्ड मेथड इज दिस इज द हिस्टोग्राम। So if we go through the histogram, a histogram is a graphical representation which organizes a group of data, a group of points into user specified ranges. Histogram provides a visual interpretation of numerical data by showing the number of data points that fall within a specified range of values. So bins are important here. So it is similar to vertical bars, but without gaps between the bars. तो histogram में gaps नहीं होते इसके अंदर, ठीक है जी। So this is the method, histo method। ये method भी हमें required है और bins जो हैं basically they are also required, ठीक है। And let's now test. Yes, so statement A is correct. A is correct. तो मेरे हिसाब से ये कंपल्सरी नहीं होगा। This is compulsory. Bins are not basically compulsory. A is correct. ये B के बारे में कुछ नहीं बोल रहा and B is correct. And I think the answer goes for this one, B1। फिर भी इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। Let's move to the question number 31. So what is the 31 is C. So we are on the right track, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है, bin is not compulsory, ठीक है। यही चीज हमें भेजनी है, that is that whenever we are answering, so B is incorrect, only bin is required but bin is not mandatory। जैसे हमने
लाइन प्लॉट के बारे में डिस्कस किया था एक्स एंड वाई को, तो हम एक्स और वाई दोनों को लेके चल रहे थे, बट एक पैरामीटर से भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी. सो द सेम सॉर्ट ऑफ रीजन इज कमिंग हियर. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर एक ही है ये, मेरे को लगता है ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट इज यस गुरलीन. Which graph should be used where each column represents a range of value and the height of a column corresponds to how many values are in that range? So plot, line, bar, and histograph. Sir, I think histogram. हिस्टोग्राम. ठीक है, मेरे को भी यही लग रहा है, दैट इज द हिस्टोग्राम शुड बी द आंसर ऑफ दिस वन. जस्ट 32 को यस, तो हिस्टोग्राम इज द राइट आंसर. ठीक है, सिनारियो उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस किया हुआ है यहाँ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 33. यस हर्षित. Suhani is confused about the free operating system available in the market. Few of her friends suggested a free operating system. Help her in choosing free operating system for her device. Option A, Ubuntu. Option B, Windows. C, Mozilla Firefox. D, Blender. ये Sir, ब्लेंडर I क्या think है? Ubuntu. किसी को पता है ये ब्लेंडर क्या चीज है? ब्लेंडर. Yeah. यस अमरवीर. बताना, एक्सप्लेन सर करना. मतलब जैसे जब आप गेमिंग वगैरह आप मतलब डेवलपमेंट में जाते हो तो वहां पर ब्लेंडर यूज करते हैं. उसमें मतलब कि सर ब्लेंडर ही पूछा है ना, हाँ जी, हाँ जी. तो उसमें बेसिकली जब हम ग्राफिक्स वगैरह डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत यूजफुल एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे ब्लेंडर. ठीक है, ठीक. तो वन थिंग इज श्योर दैट दिस इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. यस Yes, sir, हर्षित. it is not. यस हर्षित विल आंसर. हर्षित आप बता रहे थे आंसर. Sir, option A, I think. हाँ, ऑप्शन ए. जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज विंडोज इज ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. Mozilla is a basically this is a browser, and Blender Browser. already explained may be used for graphics. I will also check it out what this Blender is basically, but whatever the answer is given by Amarveer is, it's not a basically operating system. So just to verify the contents, so Ubuntu is the right answer. Question number 34, again 4 statements are given. Yes, Amarveer, आप करो ये क्वेश्चन ट्राई. Consider the following statements with reference to the use of email. Statement 1, sending threatening messages to a classmate. Statement 2, inviting friends to participate in a school club or sports activity. Statement 3, asking your teacher for help on homework. Statement 4, responding or forwarding spam emails. Which of the following statements refer to appropriate use of email? Answer is option 2 and 3. Yes, that's correct. So looking at the option, the 2 and 3 are the constructive uses. 1 and 4 are the not the constructive uses basically. So जहां पे ये 1 आ रहा है और 4 आ रहा है, so we have to discard only 2 and 3 is the correct answer. So let's move to the consider the following series. Yes, Gurleen. सर सीधा आंसर बता दूं? बता दो. हाँ बता दो, आंसर बता दो, राइट दी आउटपुट बता दो. हाँ जी सर, पहले वुल्फ आएगा, फिर उसके बाद बीयर आ जाएगा, फिर उसके साथ बी और डब्ल्यू भी लिखे आ जाएंगे इंडेक्स. पहले इसके ऑप्शन तो देख लो क्या क्या है इसका.
ऑप्शन इज टाइगर एंड बताओ ABCD में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन? Sir, C, sir. सी, वॉल्फ एंड बियर। तो वॉल्फ तो आएगा ही आएगा, ये -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -3 और ये -4 बियर। ठीक है, क्योंकि बाद में हमने उसके अंदर क्या करनी है, -3 की इंक्रीमेंट करनी है। ठीक है, पहले इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है दैट ये -3 रिप्रेजेंट करता है स्टेप वैल्यू को। तो इसका मीनिंग है कि हमने इसको शुरू कहां से करना है, राइट हैंड साइड से शुरू करना है। तो पहले वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा वॉल्फ, और उसमें फिर हमने क्या करनी है, 3 की इंक्रीमेंट करनी है। सो दिस इज 1, 2 एंड 3। सो दिस इज द बियर विल बी द आंसर। जो सेकंड वैल्यू होगी दैट विल बी द बियर 1 एंड सी इज द ऑप्शन। और यहां से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 33, 34 हमने कर दिया आंसर एंड 35 इज सी। सो वी आर ऑन द राइट लाइन। ठीक है जी, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36। और यस विश्वजीत ट्राई करोगे? हाँ जी सर। यस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। Saharsh is a student of class 9 and he is a very frequent user of internet applications. One day he got an unpleasant message on his instant messenger. What do you think he should do? Sir, इग्नोर करना है option इसको। C, I think shut down the computer and hope they will leave him alone in future. क्या है इसका आंसर आपने बोला? Option C. ऑप्शन सी, शट डाउन द कंप्यूटर एंड होप दैट दे विल लीव हिम अलोन। डी ऑप्शन है, गो टू पेरेंट्स, टीचर और अदर ट्रस्टेड एडल्ट and let them know what he feels, that he feels uncomfortable. So I think that's the right sort of answer. Yes, Harshit? सर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी है कि हमें रिपोर्ट तो करना चाहिए। वी शुड नॉट बेसिकली टेक डिसीजन ऑन योर ओन एंड हाइड एनीथिंग। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 37। यस हर्षित, आप भी करो इसको, पढ़ो इसको क्वेश्चन। What is the correct syntax to return the values of first row of a pandas data frame, assuming the name of data frame is dfrend? dfrend 0, dfrend.loc1, dfrend.loc0, and dfrend.iloc1. To return the values of first row of a pandas data frame. सर डी या बी में से होना चाहिए। हाँ जी, सर डी या बी में से नहीं होना चाहिए इसका आंसर। डीएफ क्या होना चाहिए? सर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी में से आंसर होना चाहिए ना इसका। इस क्वेश्चन में तो आई एम आल्सो अ बिट कंफ्यूज्ड ऑन दिस क्वेश्चन। चलो एक बार ले लेते हैं, थोड़ी हेल्प ले लेते हैं। यस गुरलीन, इन द मीनवाइल व्हाट्स द आंसर? सर सी होगा। 36 डी हो गया। पिछले क्वेश्चन का आंसर गो टू द पेरेंट्स एंड द सी इज द राइट आंसर। सो just have a look at the C option is df rent loc 0. loc 0 represents the first row. तो एक बार know how to access the values and how to return the values. 1 जो है वो सेकंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये मेरे हिसाब से ये 2 ऑप्शन इसलिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, and this is the way to return a value to access the first row of pandas data frame. So now
The option C is the right answer. Let's move to the question number 38. Yes, Gurleen. Feasible method to manage e-waste. Answer is all of the above. Reduce, reuse, and recycle. Very good, very good. So this I think is an easy question. Yes, Amarveer. The difference between LOC and ILOC is option A, both are label index based functions. Option B is both are integer position based functions. Option C is LOC is label based function and ILOC is integer based function. Option D is LOC is integer based function and ILOC is index based function. We can say the answer will be option D. Option D. Last. चलो Yes, ठीक है. sir. Yes, first Harshit, then Gurleen. सर डी होगा शायद फिर से. D. Okay. Yes, Gurleen. Sir, it is C, sir. LOC is a label-based function and ILOC is an integer position-based Yes, function. yes. So I also go with the C option. Yes, Harshita, you want to say something on this? Harshita. So Harshita is taking time. So I just want to verify what is the answer is. All of the above is question number 38, 39. The C is the right answer. So I was also looking at the C option. ठीक है. तो जो C है वो बेसिकली लेबल बेस्ड है. ILOC इंटीजर पोजीशन बेस्ड. तो I का तो मीनिंग ही इंटीजर पोजीशन के लिए यूज होता है और LOC इज ए लेबल बेस्ड फंक्शन. ठीक है. और जो आपने D बोला है LOC इज ए इंटीजर पोजीशन, तो ये तो बिल्कुल गलत है. LOC इज नॉट इंटीजर बेस्ड और ILOC इज ए इंडेक्स पोजीशन. तो LOC का ये काम नहीं है. ठीक है जी. To the question number 40 and ठीक है. Yes, हर्षित आप करो. हर्षित क्वेश्चन नंबर 40. यस, इसके बाद हर्षिता. हाँ जी, करो स्टार्ट. Write the output of the given program. Import pandas as PD. S1 equals to PD.series 5, 6, 7, 8, 10. हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं. इसको रीड करने की जरूरत नहीं है. ABCD में से बता दो आप क्या लग रहा है. पहले सीरीज की वैल्यू दी हुई है. दूसरी सीरीज में हमारे पास स्केलर वैल्यू है. इंडेक्स ऊपर गिवन है. थोड़ा सा मेरे को लगता है इसमें कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. वी सबसे पहले आंसर में क्या है, ए लिखा हुआ है. तो ए तो है ही नहीं है फर्स्ट में. यस हर्षित बताओ बेटा आंसर. सर एक मिनट सॉल्व कर रहा हूँ. हाँ जी. ये अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन हमने थोड़े दिन पहले हमने ट्राई किया था क्लास के अंदर ना. तो मैंने आपको बताया था कि ये माइनस कैसे होगा. बेसिकली ये v के कोरस्पोंडिंग जो v की वैल्यू है, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे v की वैल्यू है 1. तो ये v के कोरस्पोंडिंग आई थिंक 4 विल बी द आंसर. v के कोरस्पोंडिंग तो यहाँ पे सारे -1 -1 ऐसे लिखा हुआ. यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है. सर v की वैल्यू सेकंड में 6 है ना, इस करके -1 है जी. सर C और D में से एक ऑप्शन आंसर इसका. क्या C और D में से एक आंसर है मेरे हिसाब से. कैसे B लगा? और C में, सॉरी B और D में आंसर है. C तो गलत है. B और D में से एक आंसर है. ये v की वैल्यू -1 कैसे आ रही है. v की वैल्यू सर 5 - 6 हो गया ना. अच्छा, मेरे को यहाँ पे तो इंडेक्स ही गलत दिखाई दे रहा था. ये मैं तो ये L है बेसिकली. मैं इसको 1 लेकर चल रहा था. सो दिस इज L 2 4 5. ठीक है -1 ही आएगा.
मेरे को ये 1 लग रहा था। और v के बाद क्या है, a में तो डेफिनेटली यही आ जाएगा NaN, b में NaN है और d में NaN है, तो ये b और d में कंपटीशन है, दिस इज करेक्ट। v की वैल्यू भी -1 आ गई, w की वैल्यू चेक कर लेते हैं, w की वैल्यू भी दोनों में 2 है, तो w को भी छोड़ देते हैं। x की वैल्यू चेक करो, x की वैल्यू इधर 3 है, इधर NaN है, तो x की वैल्यू देख लेते हैं। x की वैल्यू है, यहाँ पे आ रही है 7, यहाँ पे आ रही है 1, तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, सर दूसरे में तो NaN x है ही ही होगा। नहीं है, इसमें तो x है ही नहीं है, तो X है ही NaN नहीं आएगा इसका आंसर। नहीं ये सर, भी- 7 आएगा क्यों, x दूसरे में तो है ही नहीं। सर। S1 माइनस S2 है ना, तो S1 में तो x है, तो 7 ही आएगा। तो 7 माइनस, यहाँ पे तो x है ही नहीं ना, तो यहाँ पे NaN नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी वाली इंडेक्स में तो है ही नहीं x। तो सर 7 माइनस NaN 7 नहीं आएगा। 7 माइनस NaN, जब आपके पास 2 नंबर हो गए, एक 7 है एक NaN है, तो कैसे आप उसको 7 बना दोगे? यू आर गेटिंग और नॉट? तो देखो, सर NaN कैसे बन जाएगा? तो मैं तेरे को बताता हूँ यार, एक मिनट वेट दो, ठीक है। एक नंबर है हमारे पास 7 है, अब 7 में से आप NaN माइनस करोगे तो 7 कैसे आ जाएगा? पहले मेरे को ये बता दो कि आप कॉन्फिडेंटली बोल दोगे कि इसका आंसर 7 आएगा, ठीक है? यस अमरवीर विल से समथिंग ऑन दिस। सर आई कैन क्लियर इट। हम एक्चुअली जब हम कैलकुलेट करने लगते हैं, हमारे दिमाग में एक परसेप्शन होती है कि NaN या फिर नल वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, इसलिए शायद गुरलीन बोल रहा है कि 7 माइनस NaN 0 होना चाहिए। चलो ठीक है, बट द ट्रू कंसेप्ट इज NaN जो होता है वो नॉन स्पेसिफाइड वैल्यू है। NaN को आप कोई भी वैल्यू बाद में जब फिल Na वाला कंसेप्ट यूज करके कुछ भी वैल्यूज दे सकते हो। तो अगर मान लो NaN की वैल्यू हमने 8 रख दी, 7 + 8 कुछ और 15 बन जाएगा, ठीक मम्मा है? मेरे तो भांडे ले वैसे जाओ ते ही पानी दे। और यस तरनजोत म्यूट कर लेना बेटा। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी तो सर। वैसे ही अगर हम NaN के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो वो NaN की वैल्यू पर डिपेंड करता है, इसलिए हम उसका आंसर NaN लिखते हैं। ठीक है, सो यस वी गॉट द आंसर, हियर इज आंसर इज बी, ऑप्शन बी। तो एक बार फिर से इसको वैल्यूएट कर लेते हैं, हाउ वी गेट द आंसर बी इज, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू NaN आ रही है यहाँ पे, ठीक है, या और यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, दैट्स व्हाई a इज डिस्कार्डेड, क्लियर? सो x की वैल्यू NaN ही आएगी यहाँ पे, सो दैट इज b इज द राइट आंसर। एक बार इसको, अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, माय रिक्वेस्ट इज, ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था, स्टिल इफ यू हैव क्वेश्चन प्लीज try to implement these questions. Let's move to the question number 41. And yes, Harshita is there. Harshita Tiwale B. Yes, so unable to have a contact with Harshita. Yes, Gurleen. We should exhibit proper manners and etiquettes while being online. Choose the right net equities from the following. Avoid Etiquettes. cyberbullying. Yes, sir. Etiquettes from the following. Avoid cyberbullying. Respect others' privacy. No copyright violation. All of the above. It's a D. All of the above. Yes, no copyright violation, respect others privacy, avoid, yes, ये तो ठीक ही है, सारे पॉइंट्स को कवर करना चाहिए। So let's move to the question number 42. Yes, Amarveer. Which command will be used to delete 3 and 5 rows from the data frame, assuming that data frame has name df? The options are df.drop 2,4 axis 0, df.drop 2,4 axis 1, df.drop 3 axis 1, df.drop 3,5.
फिर here first of all we will see the axis. Axis जो हमें यहाँ पर रो करना है तो रो का axis 0 होता है, तो only option A has row axis 0, so answer should be A. ए थर्ड रो को हम 2 और 4 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर सी एंड डी विल बी रिमूव्ड, और रोज के लिए हम यूज करते हैं एक्सिस इज इक्वल टू 0। एक बार इसको वेरीफाई कर लें, दैट इज दी यस गुरलीन। सर मेरे हिसाब से बी आएगा। So A is the right answer because axis is equal to 0 is basically there for rows. So yes, so let's move to the question number. So if you are able to discard the options, na, that's a very good scenario. क्योंकि 3 and 5 basically represents the row number 4 and 6. तो ये बड़ा सही है, अगर आप इसको क्रिटिकली यूज कर लेते हो इसको, तो 2 ऑप्शन तो आप पहले ही बाहर कर दोगे, फिर आपने बस यही आंसर करना है कि रो के लिए एक्सिस 0 चाहिए और कॉलम के लिए एक्सिस 1 चाहिए। क्लियर? सो ये बस बिल्कुल केबीसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं काफी सारे क्वेश्चन इसके अंदर, सो यू शुड हैव ए गुड ग्रिप अकॉर्डिंग टू केबीसी। यस गुरलीन, आप करो नेक्स्ट आंसर। सर एक मिनट। यस ये पहले सबसे पहले क्या है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर चलेगा, मींस एस सर। परसेंटेज सर हाँ जी हाँ जी सर डी आएगा मेरे साथ, डी। डी, तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये बी की वैल्यू सर सी, सर सी आएगा। मैं बी की वैल्यू 246, यस 246, क्योंकि ये डिवाइड हो गए, क्या क्या सिलेक्ट होगा, डिवाइड मींस हमने डिवाइड करना नहीं है, रिमाइंडर 0 होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 यू गेट 0 रिमाइंडर, 4 डिवाइडेड बाय 2 यू गेट 0 रिमाइंडर, 6 डिवाइडेड बाय 2 यू गेट 0 रिमाइंडर, तो ये वाली वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगी, दिस एंड दिस। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है वो कौन सा आ जाएगा, बी डी एंड एफ, सो बी डी एफ, लेकिन ये 1 2 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 4 6 ही आएगा। सो लेट्स चेक दी क्वेश्चन नंबर 43। So C is the correct answer. So good try by Gurleen Singh. So let's move to the question number. देखो ये numerical, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, then you can answer this question. Yes, हर्षित। Ritika is a new learner for Python Pandas and she is aware of some concepts of Python. She has created some lists but is unable to create the data frame from the same. Help her by identifying the statements which will create the data frame. पहली स्टेटमेंट दी हुई है ए, सर ऑप्शन ए होगा इसका? जी Yes, sir. ऑप्शन ए, Option A. Because in option B, there the syntax of dictionary is wrong. They have created a tuple, and सर डी होगा ऑप्शन सर।
sorry for the interruption. So what is the answer given is Option A. ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ नेम सर, के ए होगा। नेम के कॉरस्पॉन्डिंग ये लिस्ट हमने डाल दी, ये नेम वाली, और फिजिक्स में ये फिजिक्स के मार्क्स आ गए, केमिस्ट्री में ये आ गए, ठीक है। बी तो मेरे हिसाब से डिस्कार्डेड है बिकॉज दे हैव यूज्ड दिस, ये टपल वाली नोटेशन यूज की हुई है। और सी के अंदर क्या है हमारे पास, डाटा फ्रेम में हमने ये लिस्ट एंटर कर दी, लाइक बट लिस्ट के अंदर फिर आगे फर्दर ये वैल्यूज होनी चाहिए, लिस्ट विद इन ए लिस्ट वाला कंसेप्ट बन रहा है, सो दैट्स विल बी डिस्कार्डेड। डी में क्या है हमारे पास, नेम, और नेम के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला नेम रखा हुआ है, तो ये तो बन जाएगी हमारे पास की, और ये हमारे पास बन जाएगी, दिस इज ए वैल्यू, दिस इज ए की, तो ये भी गलत मैकेनिज्म है, ये लेफ्ट पे चाहिए था, ये राइट पे चाहिए था। सो आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर। पर फिर भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं, दैट इज वी माइट बी ऑन द कंफर्म करना। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन नंबर 45। यस हर्षित, आप करो ट्राई। Linux, MySQL and Mozilla Firefox software came under dash category. सर शायद बी या सी में से है। ए तो है नहीं है, और शेयरवेयर भी नहीं है ये, आई थिंक दे डोंट फॉल अंडर द कैटेगरी शेयरवेयर, B फोर्स और फ्रीवेयर में आएंगे ये। हाँ बी, सर बी नहीं होना चाहिए क्या एफ ओ हाँ। एस एस में? ये मेरे को भी हल्का हल्का दोनों में कंफ्यूजन आई, फ्रीवेयर और अंडर दिस साइड हल्की सी एक क्लास है इन दोनों में ना, तो एक फोर्स ही है, फोर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे व्हेन वी गो थ्रू ये फोर्स और फ्रीवेयर में क्या डिफरेंस होता है। फोर्स में बेसिकली नो, फोर्स में हल्की सी क्लास आ जाती है पेमेंट की, एक sorry for another interruption. So फोर्स में हल्की सी एक, फ्रीवेयर में यू नो द थिंग इज टोटली फ्री, बट फोर्स में हल्की सी पेमेंट की क्लास आ जाती है इन सर्टेन कंडीशंस। क्लियर? सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज गो थ्रू दी, ये जो इसका कंटेंट दिया है हमारे पास बुक में, एक बार फोर्स और फ्रीवेयर में आप एक बार कंपैरिजन कर लो। फ्रीवेयर इज ऑलवेज फ्री, बट फोर्स में हल्की हमें कई बार वी हैव टू टेक ए लाइसेंस एंड वी हैव टू मेक सर्टेन पेमेंट्स समटाइम्स, not every time. ठीक है, so this is a question number 46 is yes Gurleen. एक मिनट सर देना। कोई दो ऑप्शन डिस्कार्ड करके बता दो मेरे को, कौन से दो ऑप्शन डिस्कार्ड होंगे इसमें से? सर ए नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, Yes. तो आंसर आएगा बी, प्रिंट डीएफ डॉट शेप। तो शेप में क्या होता है बेसिकली, रोज एंड कॉलम्स। पर सर 3/5 फिर भी नहीं आएगा। हाँ तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, शेप हमें बताती है इसकी कितनी रोज हैं कितने कॉलम है इसके। हाँ तो वो वहां सर तो कॉलम्स और रोज बता रहे हैं। हाँ तो सी ऑप्शन इज साइज। साइज ही होगा फिर सर, साइज ही है कि बी भी नहीं सर होगा। जिस हिसाब से आप बोल रहे हो उस हिसाब से तो नन ऑफ द करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि साइज में भी वो 3 to 5 चलो 15 देख लेना बता इसको, देगा। एक बार इसको ऐप प्रैक्टिकली रन करके देख लेना। आई विल जस्ट गो थ्रू द आंसर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, शेप ही है इसका आंसर, ठीक है। तो सर वो रोज और कॉलम्स नहीं बताएगा। तो आप एक बार इसको रन करके देख लेना। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, एक सिंपल सी बात है, डाटा फ्रेम क्रिएट करो और दोनों मेथड को आप रन करके देख लो इसमें।
फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये है क्वेश्चन हमारे पास। तो शेप में मेरे को जो अभी तक याद है ये रोज एंड कॉलम्स के लिए है बेसिकली। तो यहाँ पे कॉलम एंड रोज की ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है, दैट इज द कॉलम्स आर 3 एंड रोज आर 5। तो एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे तो दैट्स आई थिंक इज ए बेटर सिनेरियो रादर देन जस्ट डिस्कसिंग टू मच। ठीक है जी, लेट्स मूव टू दी वन मोर क्वेश्चन इज 47। यस अमरवीर। Write the output of given command dfl.loc 0, Consider the data frame. So here answer will be, sir, it would be B. Yes. Anyone else wants to answer? सर स्क्रीन शेयर करना फिर से। जल्दी बोलो जल्दी। मेरे हिसाब से हाँ जी ऑप्शन ए सर, है। बी होगा। ऑप्शन ए इज फ्रॉम माय साइड। सर फ्रॉम माय साइड इट्स बी। इट्स बी। अब बताओ बेटा, थोड़ा करो एक्सप्लेन। गुरलीन कैसे आएगा बी इसका आंसर? फिर मैं बताऊंगा ए कैसे सर आएगा। हाँ, df.loc है ना, तो सबसे पहले जो कॉलन डाला हुआ है वो रोज के लिए होता है। तो स्टार्टिंग वैल्यू तो दी नहीं है, तो एंडिंग वैल्यू 0 दी हुई है। तो रोज तो पहली रो आएगी उसके अंदर। और फिर उसके बाद हमने अगली जो होती है वो कॉलम के लिए होती है। तो कॉलम उन्होंने सिर्फ सैलरी डिफाइन किया हुआ है, तो सैलरी डिफाइन किया है और रो 0 के ऊपर 50,000 वैल्यू है। क्या क्या बोल रहे हो आप? बेसिकली ये रो वाला पार्ट तो इसने दिया ही नहीं हुआ ना। सर दिया है। कौन सा? सर देखो सर, स्टार्टिंग वैल्यू दी नहीं उन्होंने, कॉलन कॉलन से फिर पहले एंडिंग वैल्यू रोज दी है। आती है। कॉलन से पहले रोज आती है हमारे पास। नहीं सर, कॉलन जो होता है ना वो डिफाइन करता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी। उसके बाद कॉमा डाल दिया ना उन्होंने। सबसे सिंपली समझाऊं तो कॉलन जैसे अगर लिखा होता 1:2, मतलब 1 से लेकर 2 तक चलेगी। उसके बाद कॉमा डाला कि अगला हम कॉलम के लिए डिफाइन करेंगे कि सैलरी कॉलम है। कॉमा से अलग करते हैं रो और कॉलम को इसमें एलओसी मेथड में। 0 कॉलम एंड सैलरी। अगर सर हम दोनों को अलग करते हैं स्टेटमेंट को, जैसे जैसे सर पहले कुछ भी नहीं लिखा, फिर कॉलन आ गया, फिर 0, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो अगर इसको हम सिलेक्शन मेथड से सोचें तो इसका मतलब एंडिंग वैल्यू 0 है। रो की वैल्यू एंडिंग वैल्यू 0 आ गई, तो हम इसमें 0 पे आ गए। फिर उसके बाद सिर्फ सैलरी ही डिफाइन किया हुआ है इन्होंने, उसके बाद कुछ नहीं लिखा। तो हम सैलरी वाली कॉलम में जाएंगे और रो का हमने डिफाइन कर चुके हैं, तो 50,000 आ गई वैल्यू। चलो ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करके देखना। आई विल टेल यू दी राइट ऑप्शन है। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ठीक है, इसको थोड़ा एक बार करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? बी। 47। हाँ 47, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो माय रिक्वेस्ट टू अदर इज दैट इज प्लीज गो थ्रू एंड इंप्लीमेंट दिस क्वेश्चन इज 50,000 सैलरी। ठीक है जी, ओके जी। This is now the new data frame and write the output of the given command df.marks divided by 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? df.marks divided by
2. 45 NaN this, 45 NaN 43. तो पहले में क्या आ रहा है हमारे वैल्यू फ्रैक्शंस में आ रही है, और दूसरे में ये सेकंड वैल्यू इंटीजर में आ गई, फर्स्ट में पहली इंटीजर में आ गई, और डी में। तो डी विल नॉट बी द आंसर। मेरे हिसाब से ये ए ही बनेगा, ए इज द आंसर। बाकी आप बताओ। एक बार फिर से मैं डाटा फ्रेम दिखा रहा हूं। डाटा फ्रेम की वैल्यूज ये जो है दैट विल गेट डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से डिवाइड होने के बाद यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस। ठीक है, हाँ जी गुरलीन। सर एक बार थोड़ा ऊपर जाना। कोड देखना है। हाँ जी सर, वो तो बस यहाँ तक बस। सर जैसे प्रिंट लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट df डॉट मार्क्स, सर इसमें तो फिर लिस्ट की तरह वैल्यू आती होती है 90, NaN, यार आप 87। यार आप आंसर के अकॉर्डिंग देखो एबीसीडी में से क्या है। ऐसे तो ए आएगा सर आंसर। ठीक है ना, बिकॉज यू विल गेट द आंसर्स इन फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू दी है, यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे डी में ये 0 दी हुई है। बिकॉज NaN व्हेन NaN डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर NaN ही आएगा। सो आई थिंक द ए इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 48। So the question number 48, the right answer is A. Let's move to the सर हाँ जी हाँ जी। सर पर तभी भी जैसे लिस्ट बनी है तो उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? हाँ जैसे df डॉट मार्क्स जब हम लिखते हैं तो हमें हाँ। नीचे एक लिस्ट के तौर पे सारे नंबर्स दिखाते हैं वो, तो जब बेटा वो फिर ऐसे तो उसके दिखा बाद रहे हमारे पास आउटपुट ही आएगी, आउटपुट। हैं, फिर डिवाइडेड बाय लिस्ट को डिवाइडेड बाय 2 कैसे करेंगे? और ये लिस्ट नहीं है, ये कॉलम को डिवाइड कर रहा है ये जैसे सारे सर कॉलम। मैं कह रहा जैसे सर अब जब हम df डॉट मार्क्स लिखते हैं तो हमें सबसे नीचे आउटपुट आती है, हर एक जो वैल्यू कॉलम के अंदर है वो एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाती है, तो उसके बाद हम डिवाइडेड बाय 2 कैसे करेंगे? इसको करके देखना यार एक बार, इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करके देखना। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 49. 2% in the meeting. Vanshika joining very late. Yes, कौन सा है अब हमारे पास? Very few people are left. Rest have gone for the breakfast. And yes, Harshit. Yes, sir. 49. So 49. Okay. Read the statements given below. Identify the right option from the following for the attribute and method function. Statement A, attribute always ends without parentheses. Statement B, function method can't work without argument. A, both statements are correct. B, both statements are incorrect. C, statement A is correct but B is incorrect. D, statement A is incorrect but B is correct. देखो पहले सबसे पहले जो पहले वाली लाइन है इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। एट्रीब्यूट ऑलवेज एंड्स विदाउट पेरेंथेसिस, तो ये सही है कि एट्रीब्यूट जब भी हम यूज करते हैं पाइथन में दे एंड्स विदाउट द पेरेंथेसिस, उसके बाद में पेरेंथेसिस नहीं आती, ये ठीक है। फंक्शन एंड मेथड्स कैन नॉट वर्क विदाउट आर्गुमेंट्स, तो कई बार क्या होता है कि हम फंक्शन के अंदर सम ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं, पैरामीटर इट कैन नॉट वर्क विदाउट द आर्गुमेंट्स। तो कई फंक्शन होते हैं, कोई फंक्शन ऐसा होता है जो विदाउट आर्गुमेंट भी चल जाता है, ऐसा होता है या नहीं होता? पहली स्टेटमेंट्स तो फॉल्स ही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, तो ए इज करेक्ट, ये भी गलत हो गया, और ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट। तो ये बी और डी में ही कंपटीशन है, A is incorrect and B is correct। तो ये क्योंकि कई बार जो फंक्शन है उसमें आर्गुमेंट कंपल्सरी नहीं होता, the function and methods cannot work without arguments, तो ये wrong है। ये this is the function and method cannot work without
arguments. So this is wrong. The B is also wrong. हाँ जी गुरलीन. सर सी आएगा. A is कैसे correct होगी यार? सर attribute always ends without parenthesis. हाँ ये तो ठीक है. Attribute always ends without parenthesis, ये ठीक है. And B is incorrect. तो ये incorrect है because the function and methods cannot work without argument. जैसे हमारे पास series method है, तो series method it can work without argument. जैसे था हमारे पास, ऐसे हम लिखते थे series pd dot series. अगर हम ये आर्गुमेंट हमने मेथड यूज कर लिया सीरीज pd डॉट, तो इससे क्या होता था? ब्लैंक सीरीज बनती थी सर. यस. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इट कैन वर्क विदाउट पैरामीटर. सो बी पार्ट इज करेक्ट. सो एक बार इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं. दैट इज द आंसर इज 49. The answer is C. Okay, fine. So I think so today we have discussed so many questions from the exams perspective. कोई आपको इसमें कोई और 5-6 questions और रह गए हमारे पास. So my request is download this paper. अगर आपके पास नहीं है, so you can ask me. I will provide you the soft copy of this paper. So today we have gone through the 49 questions. और yes, हर्षित कोई क्वेश्चन है आपका? सर कल जो सब्जेक्टिव वाला पेपर आएगा वो कैसे करना है सर प्रिपेयर? वो कैसे करना है? बस आपको प्रोग्राम जो दिया होगा वो प्रोग्राम बनाना है. वहां पे जो क्वेश्चन दिया होगा उसको अटेम्प्ट करना है आपको थ्योरी में. सर उसमें वेटेज कितनी होगी पाइथन की जो थ्योरी वाला है? मैं आपको बता रहा हूँ जो कल वाला पेपर है, मैं उसकी वेटेज आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ. ठीक है. पहले तो आपके पास एक एमसीक्यू वाला आएगा, एक सब्जेक्टिव आएगा. एमसीक्यू वाले पेपर के अंदर क्या होगा? 35 टोटल है, तो 10 एमसीक्यू आएंगे और सोसाइटल इम्पैक्ट के 25 आएंगे पाइथन के जितने भी टॉपिक्स हैं. और सब्जेक्टिव में भी 10 मार्क्स का आएगा आपको सोसाइटल इम्पैक्ट, और 25 मार्क्स के आ जाएंगे बाकी जितने भी पाइथन के क्वेश्चंस हैं. सो दिस इज एमसीक्यू एंड दिस इज सब्जेक्ट. टोटल 70 मार्क्स इज देयर. ठीक है. और कोई क्वेश्चन है? गुरलीन, वंशिका. सर क्लियर सर. वंशिका कोई क्वेश्चन है आपका बेटा? कोई सर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा. कौन सा क्वेश्चन पेपर? सर ये वाला जो था सर, सैंपल पेपर. सैंपल पेपर जो सीबीएसई वाला है? यस सर. ठीक है. मैं अभी मेरे पास कोई ग्रुप तो नहीं है मेरे पास. दैट इज यू जस्ट सेंड मी दी व्हाट्सएप मैसेज, तो मैं अभी आपको ये फॉरवर्ड कर देता हूँ. ठीक है जी. ओके सर. थैंक यू बेटा. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. थैंक यू सर.